One is one is a technical. The topic is some technical copy control, and one is functional. Okay. This topic is called actually rebate processing. One second, I just I'm writing it. Okay. Rebate. Rebate, you know now what is the concept of rebate? Rebate is a one Yes, sir. type of discount. It's given to the customer after payment done by customer, right? Correct. So rebate is a one type of agreement, we can say, with the customer for the certain quantity of product ordered by customer and paid on time and within a time period, will get the benefit of rebate, right? Yeah. Rebate is just like type of allowances provided to the customer on goods purchased as a deduction in the catalog price. Or we can say in a simple word, after payment is done by customer, company will give some amount back to the customer account. That is called rebate amount, right? So there is this discount and rebate, both are similar. And discount also some deduction and rebate also some deduction. But discount is visible in the sales. When we do the sale order, discount is there, right? Immediate we get the return. Suppose 5% discount, so we get immediate return. But rebate is not a immediate return. It take a time period to uh, receive from the company. Correct. So that is the concept of rebate. And here in the S4 HANA, we call rebate is contract management, right? Because it was in ECC where we are using the rebate processing, but now in S4 HANA, it is called condition contract. Okay, clear? Yes, sir. Hello? Condition contract. Okay. So in the condition contract, first we have to know we activate a rebate option at 3 levels: sales organization level, then customer level, and billing level also. See, sales organization level, billing level, and customer level. This rebate option should be active at 3 levels: sales organization, billing document level, and customer level. Then we can uh, maintain the rebate contract management. Yeah, we can say condition contract with the customer for the specific material with a specific volume of order. Mhm. So let's first see the rebate uh, option we active in sales organization, billing, and customer. One second. So first we check the option in sales organization, rebate active. Okay. If you remember, we have defined the sales enterprise structure. In the enterprise structure, we have defined the sales organization where we have option to active the rebate option. Under the enterprise structure, definition, sales and distribution, define, copy, delete, check sales organization. And there is a defined sales organization, double click. What is the sales organization we have? Got it, right? Got a sales organization. So double click, and here we have option, rebate process active. Clear? For example, we have two sales organizations. One is in Bangalore, another one in Mumbai, but we are only giving the benefit of customer who belong to Bangalore, not for Mumbai. So which sales organization we require the rebate active option, we activate here. I just selected the only one sales organization and rebate checkbox we have selected here. This is at sales organization level. Next, we have billing document type level. In which billing document type we use for billing? You remember? Not remember.
Billing document type. Billing document type, basically, we are using the standard and we go to the billing document type. We select the billing document and we we check whether it is the active or not, rebate option. We go to the transaction code VOFA, see, VOFA transaction code. After active the rebate option in sales organization, back, and next active the rebate option at billing document level. We go to the VOFA transaction code. Billing document type F2, right? No reply. Yes, sir. This billing document type we use for rebate F2. Now here we have option relevant for rebate option, see here. And when customer will claim for the rebate amount, when customer will do the claim for rebate amount, like I have received 100,000, 10,000 rupees for rebate, we do the rebate credit memo, this billing. P1, this is for rebate credit memo. See, hai na? This is for customer who want to claim for the rebate amount, and we do the payment processing from the finance department. So we create a rebate billing by this transaction billing document type B1. See, this was rebate credit. So we have active the rebate option at billing document level. Next, the customer will get the benefit of rebate. We go to the customer, BP. We have a many customer. We have two customers for only one first customer. We're giving the rebate option. So select the first customer, double click. And customer under the role FLCU01, customer in sales. Select the role. First click on display to change button. And under the sales and distribution, we select the sales area first, sales organization, distribution channel, division. See, in the first tab, order tab, we have option here. Relevant for settlement management. We select. Both, we have option which is select. Both sales area, we have an option to select. Okay. See this option. Relevant for rebate settlement. So first, we need to active the rebate option at sales organization, billing document, and customer. And for the rebate in S4HANA, we have a standard document type. This document type we call OS12. Okay, we have defined a settlement document type, that is OS12. Okay, so we have to find this document type and what are the important fields we have in this document type we have to check. We have a step we follow, SPRO, then SAP reference IMG, logistic general, settlement management, settlement document, and settlement document type. Let's see. So SPRO, then SAP reference IMG, logistic general, and there is a settlement management. And under the settlement management, we have a settlement documents. So the settlement document, we have a settlement document types. And we have settlement document again. So we have many document types. Some document type relevant to purchasing department, some other department also. But for the sales and distribution, we have a standard document type we use for settlement, rebate settlement. We have 0S12. See, 0S12. This is called sales rebate. Double click, select and double click, and we have 1 second. See, so this document type we have for the customer, why not for see the what important field we have in the rebate settlement document type, sales rebate debit, like if we customer claim and we pay to the customer. And here
I just go extreme down. Partner function. Partner, basically we use for sales who do the payment. Okay, the customer who do the payment, but the partner function, payer. Okay, the customer who do the payment, it's called partner function, called payer. Okay, so this partner function important here, and this is under the sales and distribution. So we under the pricing application for sale price determination related to sales and distribution. This is important fields we have to know. So this is the standard document type, basically used for rebate in sales. And click on save. Now back, again back, and we have to know the process type also, rebate process type. This is a document type, and then we have a settlement process type also. Under the settlement process, define settlement process type. And here also we have a standard settlement process type relevant for rebate under the sales and distribution, that is 0S10. See, select and double click. This is also relevant to the rebate in sales. See, main important fields here we required price determination at always customer side, customer. And under the document entry control field status group related to sales rebate. This is important. And extreme below, sorry, not here. There is a settlement document type. This is called 0S12. See, just we have seen this is a settlement document type. So we have to know this settlement process type and document type for the rebate, and which document type we use to create the condition contract management, like rebate agreement. We have to know. Next important, we have to know the condition contract. The condition contract basically relevant to the contract management. Let's see, I'm just going to show condition contract. Condition contract basically the contract type which basically used for rebate for the customer, and on which basis we're giving the rebate, customer wise rebate or material wise rebate. Suppose we're giving the customer wise rebate, so there is a up to the sales value, like up to 1 lakh, 10 lakh of the order value. Based on that, we give the rebate to the customer. Okay. And if there is a material rebate, quantity wise, there's a two contract, rebate contract, contract based on customer. So customer up to how much value of the order he given, then we give the rebate. Like for example, and it's 10 lakh, 10 lakh value of the order he do, I'm giving 1% rebate to the customer. This is called customer wise rebate. And material wise rebate means quantity wise. How much quantity, for example, minimum 100 quantity customer order, then I'm giving per quantity 2 rupees rebate. Okay. तो इसमें सर्विस वाइज भी आएगा ना, अगर मुझे विजिट्स फ्री देना है तो उनको? नहीं, सर्विस वाइज तो आई हैव नॉट वर्क, इवन नॉट हियर वी रिक्वायर सर्विस. ओके, इट्स फॉर प्रोडक्ट वाइज ओनली. सर्विस वाइज तो आई एम नॉट श्योर, वेयर आई एम नॉट क्योंकि अगर सीन मेरा एनी प्रोडक्ट में सर्विस. बाद में अगर एएमसी लगता रहेगा सपोज नहीं क्या मेंटेनेंस के लिए, तो उसमें अगर मैं सर्विस में उनको 2-3 दिन फ्री दे सकता हूँ ना? तो कैसे दोगे? सर्विस को कोई देख सकता है जो उसके ऊपर हम रिबेट दे रहे हैं? सर्विस को तो देख नहीं सकते. डिस्काउंट मांगा तो मेरे स्कोप में वो एज अ अलग, सेल्स में डिस्काउंट अलग हो गया, डिस्काउंट अलग हो गया, नहीं सर्विस अलग हो गया, करेक्ट दोनों अलग है. सर्विस हाँ और प्रोडक्ट दोनों अलग है, मटेरियल अलग है. जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो उस कितना वॉल्यूम है, सर्विस की वॉल्यूम नहीं हम चेक कर सकते हैं. कितनी क्वांटिटी बेचे पता ही नहीं है, क्योंकि सर्विस को देख ही नहीं सकते हैं. ये हमेशा रिबेट उस पे है. हाँ, ये अलग हो सकता है कि टाइम वाइज तुम कुछ बेनिफिट दे रहे हो कस्टमर को, कि विद इन टाइम पीरियड ही विल पे, देन गिविंग सम डिस्काउंट टू द कस्टमर आफ्टर द पेमेंट. वो हो सकता है, बट नॉट लाइक यू कैन मेजर द क्वांटिटी वाइज एंड वॉल्यूम वाइज. ठीक है.
तो सर्विस के लिए यहाँ पे नहीं है, सर्विस के लिए वो टर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशन वेयर वी कैन अप्लाई। ओके, क्योंकि हम क्या लोग के आपने प्रोडक्ट में सर्विस एक बार ऐसा हुआ था, मतलब प्रोडक्ट फेल हो गया था तो हम लोग ने उनको मनी रिटर्न नहीं किया था, तो हाँ सर्विस में उसको कंपनसेट किया था। हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, SLR, सर्विस लेवल ओके एग्रीमेंट, सॉरी SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वो एक एग्रीमेंट बनता ओके है, वो चूंकि इसमें नहीं है, SD में नहीं है, सेल्स में, सॉरी CRM में है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड SLA, ओके। सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उसमें टर्म्स लिखा रहता है कि आपने सर्विस अगर टाइम पे नहीं दिया या कोई इश्यू हो गया, तो कस्टमर को आप रिफंड करना है या उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना है, कंपनसेशन देना है, वो सब सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे रहेगा, SLA में। ठीक है, वो सर्विस ओके का जो एक होता है कस्टमर सर्विस, जिसको बोलते हैं CS, कस्टमर सर्विस, एक मॉड्यूल भी है। और CRM है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज, उसमें भी है, दोनों तरह जगह ये ऑप्शन है। ठीक है, सेल्स में नहीं है ये। सेल्स, आफ्टर तो सेल्स सीआरएम में आई एम सर गिविंग। किस में मॉडल आता है फिर, वो अलग है क्या वो सीआरएम CRM मॉडल? SAP में ही है CRM, मतलब अभी थोड़ा एसएपी का आउटडेटेड हो गया है। एचडी उसमें अलग है क्या, एचडी जैसा एक सीआरएम भी है क्या? इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड। ओके इंटीग्रेटेड मतलब कि अगर CRM में कस्टमर जो है न्यू कस्टमर है, या फिर जो कस्टमर जो सर्विस ले रहे हैं वो कस्टमर है, सेल्स में सिर्फ वो कस्टमर है जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, क्लियर। CRM में ओके। वो कस्टमर है जिसको हम सर्विस दे रहे हैं आफ्टर सेल, या बिफोर सेल्स हम न्यू कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, उसमें CRM में है बिफोर सेल्स, आफ्टर सेल्स, बिफोर सेल्स मार्केटिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस, वो उसमें है। तो सीआरएम जो हम मॉडल है सर एसएपी का, मतलब सेपरेट मॉडल है क्या एचडी में उसका, मतलब कुछ एडवांस लेवल है नहीं ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, सेपरेट सेपरेट मॉडल है। मॉड्यूल है वो, हाँ ओके SD में ओके नहीं है ना, सेपरेट, सबका अलग अलग है। लेकिन अभी CRM ओके आउटडेटेड, एक मेरी एक कैंडिडेट है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अभी CRM पढ़ रही है, SD पढ़ रही है। उसके कंपनी में अब CRM का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है उसमें, तो CRM थोड़ा ओके आउटडेटेड हो गया। ठीक है, इसीलिए। ओके। हाँ, देखते हैं अगर कुछ उनसे डॉक्यूमेंट अगर होगा ऐसे लेगा, तो हम मांग के देते हैं। ठीक है, चलेगा सर। ये हाँ, उससे पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये दो तरह का कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, रिवेट कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो कस्टमर वाइज अप टू द वैल्यू, एंड मटेरियल वाइज अप टू द क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में द कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टाइप हमको समझना है क्या है। ठीक है, इसी के अंदर आएंगे सेटलमेंट मैनेजमेंट में, अंडर द सेटल आई थिंक, हाँ, अंडर द सेटलमेंट मैनेजमेंट देयर इज ए कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एंड अगेन देयर इज ए कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस है शायद, 1 सेकेंड, एंड देयर इज ए 1 मिनट, हाँ, जस्ट बिकॉज नेविगेशन ज्यादा है ना इसका, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, स्पेसिफाई सेटलमेंट सेटिंग फॉर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस, स्पेसिफाई, ये वाला है ना, relevant for condition contract, and we have 1 second, just a minute. ये वाला नहीं है, दूसरा, हम दूसरा गलत उठा लिए। ठीक है, ये वाला सेकंड, स्पेसिफाई रिलेवेंट फॉर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ बेसिक कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टाइप है जो हम यूज करते हैं, वेदर इट्स ए, अरे यहाँ पे तो है ही नहीं, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस में आए, फिर उसके बाद इसी के नीचे कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट है, एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिफाइंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टाइप, कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड, सर ये अभी कंडीशन वहाँ पे था, नो, एक कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, 1 मिनट, वहाँ पे हाँ, था सर अभी कहाँ पे, देखा मैंने। कहाँ पे, हाँ ये सर कॉन्ट्रैक्ट टाइप में स्पेसिफाई सेटलमेंट सेटिंग फॉर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टाइप। हाँ, यहाँ पे हाँ ना, एक, ऊपर और ऊपर सर, ये, हाँ, उसके ये ऊपर, वाला, ये है ना, उसके ऊपर नहीं, ये उसके वाला, ऊपर। हाँ ये वाला इसके ऊपर वाला, हाँ, ये वाला, इस पर हाँ ये वाला। सेटलमेंट कंडीशन, हाँ, ये वाला, ठीक है। यही कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टाइप है जो हम यूज करते हैं, वेदर इट्स ए कस्टमर और मटेरियल। तो यहाँ पे भी जो है, और जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो तुम्हारा सेल से रिलेटेड है, बाकी तो सब अलग है। देखो, 0S01 है ना, ये सेल से रिलेटेड है। ठीक है, पहले तो हम इसको डिस्प्ले टू चेंज मोड कर लेते हैं, 0S01 है ना, ये वाला। अब इसको सेलेक्ट करके ये चेक करना है कि एक्टिव मोड में है कि नहीं है। सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस वन,
लेफ्ट साइड डबल क्लिक सेटलमेंट सेटिंग, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन रहता है, एक मिनट, हाँ, ऑटोमेटिक सेटलमेंट करना है कि मैनुअल सेटलमेंट करना है। ऑटोमेटिक यानी सिस्टम ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में स्टार्ट कर देगा कैलकुलेशन करना। मैनुअल यानी हम मैनुअली उसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, कितना देना है, कितना अमाउंट हुआ, ये सब के लिए, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस टाइप ऑफ मैनुअल सेटलमेंट में हमको वो सब टेक्निकल वालों से मिलके सेटलमेंट का वेरिएंट बनाना पड़ता है। वेरिएंट यानी वो लोग बना के देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो दो दो यहाँ पे ऑप्शन है, या तो मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो मैनुअल में क्या है कि हम मैनुअली करेंगे, और ऑटोमेटिक है तो अपने आप सिस्टम ले लेगा यहाँ पे, ठीक। ये वाला ऑप्शन आया सेटलमेंट सेटिंग, देखो है ना, ऑटोमेटिक या मैनुअल, जो हमको करना है। ऑन मैनुअल करना तो मैनुअल। इसमें भी दो तरह का है, पार्शियल और फाइनल सेटल। पार्शियल मतलब जैसे पार्ट, जैसे तुम्हारा 10,000 का रिबेट आया, तो तुम पार्शली सेटलमेंट कर रहे हो, यानी दो पार्ट में तुमको दे रहे हैं, 5,000 5,000 करके दो बार। या फाइनल सेटलमेंट होता है जबकि एक ही बार कस्टमर को फुल एंड फाइनल क्लेम करेगा, उसको पूरा रिफंड कर देंगे रिबेट अमाउंट, तो वो हो गया फाइनल सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट पार्ट बाई पार्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दोनों जगह यूज होता है, या तो फाइनल सेटलमेंट में ऑटोमेटिक है, और हाँ एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एक मिनट सेलेक्ट करते हैं पहले। हाँ, ये 0S01 सेलेक्ट किया, और ये चेंज मोड में गए। कभी कभी क्या होता है, ये वाला ऑप्शन जो है ब्लॉक मोड में रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक खुलने दो पहले, है ना। हाँ, ये है ना, ब्लॉक मोड में रहता है, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज ब्लॉक। लेकिन ये नो ब्लॉक ऑप्शन में है, यानी कि ब्लॉक नहीं है। तो कभी कभी ब्लॉक करके रखते हैं, और नहीं, अगर ब्लॉक रहेगा तो इसको अनब्लॉक करके रखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर। ये हुआ। तो पहले डॉक्यूमेंट टाइप हमने देखा, फिर प्रोसेस टाइप देखा, ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। अब हाउ टू क्रिएट द कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टू द कस्टमर। अब उससे क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों जगह एक्टिव होना चाहिए रिबेट ऑप्शन, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, बिलिंग डॉक्यूमेंट और कस्टमर। यही डॉक्यूमेंट टाइप, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यूज फॉर क्रिएट द कंडीशन सेटलमेंट। ओके। तो सेटलमेंट क्रिएट करने के लिए, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्ट मेन पेज पे आएंगे, और वहां पे हम नया, अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं कस्टमर के लिए, तो रिबेट का एक कंडीशन टाइप है, देयर इज ए कंडीशन टाइप फॉर रिबेट ना, कंडीशन टाइप फॉर रिबेट, RES1। जैसे प्राइसिंग का कंडीशन टाइप है PR00, डिस्काउंट का कंडीशन टाइप है, इसी तरह रिबेट का कंडीशन टाइप है RES1। ये हम अपने प्राइसिंग प्रोसीजर में ऐड करेंगे, ठीक है। अभी जाएंगे प्राइसिंग प्रोसीजर में, इसके बाद V/08 ट्रांजेक्शन कोड, हमने प्राइसिंग प्रोसीजर पहले बनाया था, वो सिलेक्ट करेंगे। हाँ, गॉडरेज प्राइसिंग प्रोसीजर सेलेक्ट किया, लेफ्ट साइड डबल क्लिक में प्रोसीजर कंट्रोल डेटा। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन टाइप हैं, है ना, डिस्काउंट के भी है। हम यहाँ पे एक कंडीशन टाइप ऐड करेंगे जो रिबेट का कंडीशन टाइप है, न्यूट्रीज स्टेप नंबर 10 100 RES1 रिबेट, दिस कंडीशन टाइप वी यूज फॉर रिबेट। अच्छा, रिबेट कब देते हैं कस्टमर को, रिबेट कब कैलकुलेट होता है, इन विच डॉक्यूमेंट वी कैलकुलेट द रिबेट, इन सेल्स डॉक्यूमेंट और बिलिंग डॉक्यूमेंट, टेल मी। बिलिंग डॉक्यूमेंट। हाँ, तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, रूटीन है, जो रूटीन कहता है कि ये रिबेट का कंडीशन टाइप वैल्यू जो है वो सेल्स डॉक्यूमेंट में नहीं कैलकुलेट होगा, किसमें होगा फिर, बिलिंग। ओनली इन बिलिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि बिलिंग में ही कैलकुलेट होगा, सेल्स में नहीं होगा। सेल्स में तो डिस्काउंट होता है, बिलिंग में हम रिबेट को कैलकुलेट करते हैं। तो 24 रिक्वायरमेंट। और रिबेट का जो भी अमाउंट है, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इट विल बी अपडेट इन द जनरल लेजर अकाउंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वी हैव अकाउंट की दैट इज कॉल्ड ERB, ठीक है। ERB स्टैंड फॉर रिबेट
डिडक्शन। ठीक है, याद है हमने अकाउंट की मेंटेन किया था अलग अलग कंडीशन यस टाइप का। तो रिबेट का भी जो यस वैल्यू है, उसका वैल्यू जनरल लेजर अकाउंट में अपडेट होगा थ्रू दिस अकाउंट की। देखो यहाँ पे ईआरएल जैसे हमने लिया, ईआरएस लिया, एमडब्ल्यूएस लिया, ईआर, उसी तरह रिबेट का जो वैल्यू है, रिबेट अमाउंट जो है वो जनरल लेजर अकाउंट में अपडेट होगा थ्रू अकाउंट की ईआरबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिबेट कंडीशन है वी यूज RES1 पुट रूटीन ओनली इन बिलिंग डॉक्यूमेंट, यानी सिर्फ बिलिंग में ही कैलकुलेट होगा और उसकी वैल्यू इस अकाउंट थ्रू दिस अकाउंट की अपडेटिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। Clear? This condition type RES1 used for rebate. Now come back to the main page. How to create the condition contract. In the main page, there is a logistic. In logistic, there is a logistic. We have settlement management. देखो आप, है ना? We have a settlement management. हाँ, in logistic we have a settlement management. Under settlement management, one second, हाँ, condition contract management. और यहाँ पे वी हैव ऑप्शन कॉल मास्टर डेटा, और ये WCOCO, दिस इज अ ट्रांजेक्शन कोड टू क्रिएट द कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉजिस्टिक सेटलमेंट मैनेजमेंट, देन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, मास्टर डेटा एंड WCOCO। डबल क्लिक। WCOCO is a transaction code we use for rebate condition contract. हाँ, first what we do, we click on this button, create, and condition contract type जो अभी हमने देखा 0S01। ओके, ये हम यूज करेंगे 0S01 सेल्स रिबेट। ये सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन कंटिन्यू। पहली बार पेज ओपन हो रहा है इसलिए ऐसा आवाज आ रहा है, टाइम ले रहा यस सर। है। हाँ, नोबडी यूज दिस पेज फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी ट्रेनर जल्दी इस पे बताता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसलिए ये पहली बार खुल रहा है ये पेज, इसलिए ऐसा टाइम ले रहा है। कंपाइलिंग हो रहा है, कंपाइलिंग यानी वो उसको पढ़ रहा है अंदर के ऑप्शंस को। सर आपको एस्को मॉडल पता है क्या? क्या है? एस्को मॉडल, कौन प्रोडक्ट? एस्को एस्को मॉडल, SQ एस्को ESCO। ESCO, इसको हाँ मॉड्यूल है क्या? हाँ, मतलब क्या होता है इसमें, अभी जो नॉर्मली हम लोग का प्रोडक्ट जो एनर्जी सेविंग पे है, जो हाँ हम लोग हाँ प्रोडक्ट बेचते हैं ना कंपनी में, तो एनर्जी हाँ। सेविंग पे है, तो कस्टमर क्या बोलते हैं, उनके पास बजट होता नहीं है प्रोडक्ट के लिए। अच्छा सपोज अच्छा। CR में वैल्यू है, सपोज 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो उतना उनके हाँ पास उनको एनुअल कैपेक्स नहीं मिलता है। तो हाँ क्या हाँ। होता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे हम लोग एनर्जी सेविंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। सपोज अच्छे अच्छे। मैंने आपके प्लांट का 1000 किलोवाट सेव कर दिया, और उसका हाँ, 10 रुपीज वन यूनिट का कॉस्ट है, तो सपोज मैंने अच्छे। आपका 1 करोड़ रुपए सेव किया साल का। हाँ तो वो हाँ लोग हाँ, क्या ठीक है। बोलते हैं, आप हमारे पास प्रोडक्ट लगा दो पहला, हम हाँ लोग आपको हाँ। कुछ पैसा नहीं देंगे, जितना एनर्जी सेविंग होगा ना तो उसमें हम लोग आपको मंथली बिलिंग में आपका सपोज 12 मंथ्स में हम आपका जो भी 10 करोड़ का रहेगा ना, तो इंटरेस्ट लगे के आपको में हम लोग 12 करोड़ हम लोग आपका क्लोज कर देंगे, जितना हम लोग को सेव होगा उतना। तो उसको और इसको उस सेविंग कंपनी में से डील आपको करती है। कुछ पे करेगा, कंपनी पे करेगा, है हाँ ना? हाँ हाँ, मतलब उन लोग अच्छा, डायरेक्ट पीओ देते हैं हम लोग को, बट पेमेंट हाँ। आफ्टर सेविंग, मतलब लगाने के बाद 1 मंथ में जितना सेव होगा ना किलोवाट। ओ, ये मतलब एडवांस हाँ पीओ, यानी कि आपका हाँ। जब एट द एंड ऑफ हम्म, द ईयर टोटल एनर्जी सेव्ड वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इन दैट हाँ सम ऑफ द अमाउंट गिवन बैक बाय द क्लाइंट हाँ, टू द मतलब अभी कंपनी। सपोज सपोज 100 किलोवाट से हो गया प्लांट का, तो 20 किलोवाट कंपनी रखेगा, 80 किलोवाट का पैसा जो है तो हम लोग को देगा, मतलब जो हम लोग ने जिसने प्रोडक्ट भेजा है ना,
उनको। ओ ये तो एडवांस पेमेंट ये होता है ना, समझ गया समझ गया। ये मॉड्यूल मतलब कौन सा है, इसमें ईएससीओ? ईएससी एस्को मॉडल, अच्छा अच्छा अच्छा, हम देखते हैं। मतलब दो ठीक मॉडल्स है। है, ओपेक्स और एस्को। हाँ। हाँ, ऐसे। तो अच्छा समझ कैपेक्स गए, का देखते। ऑपोजिट मतलब ओपेक्स, जिसको कैपेक्स नहीं मिलता है तो ओपेक्स शुरू करते हैं। अच्छा तो अच्छा, समझ उसका गया। बिलिंग थोड़ा जानना था कि कैसा बिलिंग करेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अच्छा, नाउ हाँ कम टू बिल्कुल। दिस क्रिएट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन सा कस्टमर है जिसके लिए हम कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। जी कस्टमर हमारे पास मेनी कस्टमर है, लेकिन हमने सेलेक्ट किया कौन सा कस्टमर को लेना है, वन को, है ना। ये लिया, इसी के साथ मैंने रिबेट ऑप्शन एक्टिवेट किया था। कस्टमर लिया। इसकी वैलिडिटी कब तक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, हमेशा नहीं होता। जैसे 1 महीने के लिए हमने ये ऑफर दिया, इस महीने में जो भी सेल ट्रांजेक्शन होगा हम आपको उसका बेनिफिट देंगे रिबेट का, ठीक है। ये फॉर 1 मंथ, जस्ट लाइक फॉर दिस मंथ वी गोइंग टिल अप टू अक्टूबर, है ना, सॉरी नवंबर, या अक्टूबर के लास्ट। ठीक है, ये हो गया। वैलिड फ्रॉम वैलिड टू। कस्टमर कौन है, वैलिडिटी इसकी क्या है, हमने दे दिया। नाउ click on sales tab. You can see all the sales organization, distribution channel, division. Okay. Now come to the settlement calendar. लास्ट वाला सेटलमेंट कैलेंडर में, कैलेंडर मतलब कौन, बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर, है ना, कैलेंडर के हिसाब से सेटलमेंट करेंगे। ये नहीं कि कोई भी डेट, संडे को नो वर्किंग डे तो नो वी कांट डू द सेटलमेंट ऑन द संडे। यहाँ पे कैलेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर आएंगे बिजनेस वॉल्यूम सिलेक्शन क्राइटेरिया, है ना, बिजनेस वॉल्यूम सिलेक्शन क्राइटेरिया में आएंगे। ओके, एक मिनट, सेटलमेंट डेटा चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ हाँ, सेटलमेंट कैलेंडर के बाद सेटलमेंट डेटा में आएंगे। यहाँ पे सेटलमेंट का दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप एक बार सेटलमेंट करो या पार्शियल सेटलमेंट करो, है ना। ठीक है, तो ये सेटलमेंट दो तरह का कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ बिजनेस वॉल्यूम सिलेक्शन क्राइटेरिया में आए, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू लाइन, सेलेक्ट द न्यू लाइन, लैंड विल बी सिलेक्टेड। अब ऑन विच बेसिस यू गिविंग द सेटलमेंट, कस्टमर वाइज आप दे रहे हैं रिबेट या मटेरियल वाइज। जैसे मैंने बताया, कस्टमर वाइज अमाउंट की बेसिस पे होगा, मटेरियल वाइज क्वांटिटी के बेसिस पे होगा। 001 कस्टमर है और 009 प्रोडक्ट है, मटेरियल। तो हमने 001 लिए, कस्टमर वाइज हम देना है रिबेट, सेलेक्ट किया। यहाँ पे वही वैलिडिटी ले लेंगे, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, है ना। और यहाँ पे वो कस्टमर ले लेंगे जो कस्टमर को हम दे रहे हैं रिबेट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, टूडेज डेट टू टिल 28/10/2025, 10/2025, ठीक। ये हमने कस्टमर वाइज ले लिया था, मटेरियल वाइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर एक और लाइन ऐड करेंगे तो मटेरियल वाइज भी कर सकते हैं। नाउ आफ्टर एडिंग दिस, देन बिलो वी हैव ऑप्शन कॉल्ड दिस ऑप्शन कॉप न्यू कंडीशन। कंडीशन मतलब जो रिबेट कंडीशन टाइप, वी यूज द रिबेट कंडीशन टाइप। तो वी सेलेक्ट द रिबेट कंडीशन टाइप, दैट इज RES1, जो हमने अभी असाइन किया प्राइसिंग प्रोसीजर में। RES1 सेलेक्ट किया, इंटर किया। तो चूंकि कस्टमर वाइज है तो हमेशा परसेंटेज वाइज होगा, अगर मटेरियल वाइज है तो क्वांटिटी वाइज होगा, है ना। कस्टमर वाइज है तो परसेंटेज, 1%, 2%। क्वांटिटी वाइज है, मटेरियल वाइज क्वांटिटी वाइज, पर रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन रेट, है ना, कितना हम दे रहे हैं कस्टमर को, कितना परसेंटेज दे रहे हैं। तो हम कितना परसेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, हम 1% दे रहे हैं। तो हमने 1% ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर। यस सर। हाँ, बाकी कुछ नहीं, स्टेटस में वी नो नीड टू ऐड एनीथिंग। सेल्स में हो ही गया। सेटलमेंट डेटा, सेटलमेंट डेटा, हाँ इट इज फाइन। एंड सेटलमेंट कैलेंडर, ओके फाइन। हाँ, यहाँ पे कौन सा सेटलमेंट कर रहे हैं, पार्शियल सेटलमेंट है कि डेल्टा सेटलमेंट है। पार्शियल सेटलमेंट के लिए यहाँ पे डालेंगे, फाइनल सेटलमेंट के लिए यहाँ डालेंगे। देन क्लिक ऑन सेव, या उससे सेव से पहले हम क्लिक करेंगे रिलीज। रिलीज करेंगे तो सिस्टम विल गिव द मैसेज ग्रीन, यानी रिलीज हो गया। एंड देन क्लिक ऑन सेव। वंस यू क्लिक ऑन सेव, सिस्टम विल जनरेट द नंबर, दैट इज कॉल्ड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नंबर। हाँ, 162 नंबर इज जनरेट, सॉरी 11 नंबर, 11 नंबर हैज बीन सेव।
दिस अ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नंबर। हाँ, लेटर अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन भी करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बाद में कुछ चेंजेस करना, वेरीफाई, तो WCO पे गए। अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अदर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। हमने कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाला, इंटर किया। अगर कुछ वैलिडिटी बढ़ाना हो, कुछ परसेंटेज बढ़ाना हो, तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, देखो, है ना। क्लिक ऑन डिस्प्ले टू चेंज। हाँ, वांट टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, परसेंटेज बढ़ाना हो या वैलिडिटी बढ़ाना, तो वी कैन। अब ये 1 महीने का जो भी सेल्स ट्रांजेक्शन होगा कस्टमर का, वो सिस्टम बैकग्राउंड में कैलकुलेट करना शुरू कर देगा कि कितना वॉल्यूम का ऑर्डर हुआ, 1 लाख तक हुआ, 10 लाख हुआ। अब उसके ऊपर रिबेट 1% कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगा, देन दे विल रिलीज द अमाउंट टू द कस्टमर। तो ये सेटलमेंट हमारा काम है बनाना, लेकिन जब ट्रांजेक्शन हो जाएगा, पेमेंट प्रोसेस डन हो जाएगा, कस्टमर का पेमेंट हो जाएगा, तब उसको फाइनल अमाउंट रिबेट का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो सेटलमेंट हमने बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट। इसी पेज में सेटलमेंट का ऑप्शन है। सेटलमेंट में दो ऑप्शन है, कस्टमर के साथ कर रहे हैं कि सप्लायर के। तो कस्टमर, कस्टमर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे WB2R_SC, दिस इज फॉर क्रिएट, सेटलमेंट क्रिएट करना, है ना। यहाँ पे सेटलमेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा डेट को सेटलमेंट हम कर रहे हैं, मान लो कि अगले महीने हम कर रहे हैं, ठीक है, जब पेमेंट हो गया कस्टमर का। हम्म, ठीक है, यहाँ पे 28 जैसे मान लो सेटलमेंट डेट है। ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, कस्टमर है 1005। तो ये जैसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, कितना उसने इस महीने में ट्रांजेक्शन किया, कितना उसका है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा। इस पेमेंट के बेसिस पे कितना उसको अमाउंट रिलीज करना है, 1%, वो सारा कैलकुलेट करके यहाँ आ जाएगा। क्योंकि ये अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये तो अभी प्रोसेस में है, ठीक है, क्लियर। यस सर। हाँ, और उसके जो बोल रहे हो ना, जिस चीज के बारे में, हमको एक बार लिख के भेजोगे ना मैसेज में, हम चेक करते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है होगा। ठीक है। हाँ, ठीक। ओके। तो ये हो गया सेटलमेंट मैनेजमेंट। और एक और टॉपिक है जो कि ये टेक्निकल है थोड़ा, उसको समझना है। बाकी टेक्निकल फंक्शन वाले तो हमारा काम है, टेक्निकल वाले ऐप ऐप का काम है। ये टॉपिक का नाम है कॉपी कंट्रोल। कॉपी कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली कॉपी कंट्रोल यूज टू कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, यानी कॉपी करना, किसी एक डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन उसको कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट में डालना। तो कॉपी कंट्रोल लीजिए वन ऑफ द प्रोग्राम, शॉर्ट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोग्राम है, जो हेल्प करता है सिस्टम को कोई एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना, ठीक है। तो कॉपी कंट्रोल्स आर शॉर्ट प्रोग्राम दैट आर यूज्ड व्हेन कॉपिंग फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, एंड दे कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम नोन एज रूटीन दैट inform the system how the data is to be copied from one document, यानी source document to target document. Let's see, अब अभी हम हमारे सेल्स में सबसे पहले क्या होता है, इंक्वायरी, करेक्ट। उसके बाद क्या होता है, कोटेशन। कोटेशन, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कोटेशन VA21, आई एम सेलेक्टिंग द कोटेशन टाइप, अदर डिटेल्स, इंटर, कस्टमर, अच्छा चलिए 10, प्राइसिंग प्रोसेस कुड नॉट बी डिटरमाइन, क्यों नहीं आ रहा है, GDS1, GD, G2, अच्छे, G1, 1 सेकेंड। VA21, आई थिंक वी हम G1, 10, ठीक। कस्टमर हमने लिया, एक मटेरियल ले लेते हैं इस पे, 7151, 100 क्वांटिटी, ठीक है। अ, एक और मटेरियल ले लेते हैं, अरे फ्रिज ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी, हमने दो मटेरियल लिया कोटेशन में, ठीक है।
हाँ, अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे शिपिंग में प्लांट इन स्टोर लोकेशन। देन बिफोर सेविंग वी क्लिक ऑन इनकम्प्लीशन लॉग, है ना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, डबल क्लिक इन द लाइन। कंडीशन में प्राइस नहीं लिया है तो प्राइस हम ले लेंगे मैनुअल। कंडीशन रिकॉर्ड है तो डायरेक्ट ले लेगा प्राइस। मान लो इसकी कैमरा की प्राइस है 3000, ठीक है। दूसरा मटेरियल जो है उसकी प्राइस है 11%। क्लिक ऑन सेव। अच्छा अच्छा, वैलिड टू कस्टमर प्राइसिंग ग्रुप वैलिड टू अप टू द वैलिड फॉर 2 days 1 day हमने दे दिया। कस्टमर प्राइस ग्रुप, बल्क बायर, हाँ ना, ऑपरेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर ये कस्टमर ऑर्डर करता तो क्या करेंगे हम? क्रिएट द ऑर्डर VA01, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे यस हम? सर। कस्टमर का ऑर्डर हम डायरेक्ट क्रिएट करेंगे या रेफरेंस लेंगे, बताओ। क्रिएट रेफरेंस विथ, रहेगा सर। हाँ क्रिएट विथ रेफरेंस। तो क्रिएट विद रेफरेंस में एक सिस्टम मांगेगा कोटेशन नंबर, तो हमने कोटेशन नंबर ले लिया यहाँ से। एक मिनट, है ना। ये कोटेशन नंबर आज का है 20, कौन सा है? नहीं, कहाँ गया कोटेशन नंबर? अभी जस्ट क्रिएट हुआ था ना कोटेशन, एक मिनट देख लेते यस हैं पहले। हाँ। VA22, ये कॉपी कर लेते हैं। नाउ क्रिएट द ऑर्डर, क्रिएट विथ रेफरेंस, कोटेशन नंबर डाला, कॉपी कर दिया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? हमने कॉपी किया तो एग्जिस्टिंग डाटा ये हो गया सारे कॉपी डाटा होगा। तीनों लेवल पे, तीनों यस। लेवल यानी हेडर, कस्टमर, चलिए अपना। हाँ। आइटम लेवल, और थर्ड लेवल शेड्यूल लाइन। शेड्यूल लाइन भी ऑल्सो ले लिया, ठीक है। एक मिनट, इसको पहले कंप्लीट कर ले। आपको ले लिया। कहाँ गया शेड्यूल लाइन? एक मिनट, हाँ यहाँ पे तीनों लेवल पे सिस्टम ने कॉपी कर लिया। हेडर पे भी कॉपी कर लिया, आइटम लेवल पे भी कॉपी कर लिया, और शेड्यूल लाइन पे भी कॉपी कर लिया। देखो सारा इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लिया। ये एक्चुअली कॉपी कैसे करता है सिस्टम? ये कॉपी कंट्रोल, तो उसमें रूटीन्स लिखा रहता है। रूटीन्स के अंदर वो टेबल्स रहते हैं, टेबल्स एंड फील्ड रहते हैं, जिस वो टेबल्स फील्ड को सिस्टम कॉपी करता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट। यही कॉन्सेप्ट है कॉपी कंट्रोल का। तो आज अभी देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉपी कंट्रोल आर शॉर्ट प्रोग्राम दैट आर यूज्ड व्हेन कॉपिंग द information from one document to another document. It consists of routine program that is called routine. यहाँ पे कॉपी कंट्रोल हम सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट देखेंगे, यानी कि ऑर्डर टू इंक्वायरी टू कोटेशन, कोटेशन टू ऑर्डर एट 3 लेवल, हेडर, आइटम लेवल एंड शेड्यूल लाइन। फिर ऑर्डर के बाद डिलीवरी के लिए भी कॉपी कंट्रोल होता है, डिलीवरी के बाद बिलिंग के लिए भी कॉपी कंट्रोल होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट, यानी इंक्वायरी टू कोटेशन या कोटेशन टू ऑर्डर। एंड ट्रांजेक्शन कोड है उसका VTAA, कॉपी कंट्रोल बिटवीन सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजेक्शन कोड इज VTAA। और वी यूज द नेविगेशन। देखेंगे उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसके बेसिस पे जो सिस्टम वो कॉपी करता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में वो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड से जा सकते हैं या फिर नेविगेशन लेंगे। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड यूज करना है तो वी कैन गो बाई VTAA, इंटर ऑर्डर टू ऑर्डर, है ना, इज शोइंग ऑर्डर टू ऑर्डर कॉपी करना। देखो ये हो गया डायरेक्ट ट्रांजेक्शन। एंड वी गो टू द नेविगेशन ऑल्सो, SPRO, then SAP reference IMG, then sales and distribution, sales and copy control for sales document,
एंड हियर कॉपी कंट्रोल सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट, यहाँ आ गए। अब क्लिक ऑन पोजीशन, सबसे पहले ऊपर टारगेट डॉक्यूमेंट, यानी कोटेशन टू ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर इज ए टारगेट डॉक्यूमेंट, हमने जो ऑर्डर ले लिया GTOR, एंड कोटेशन से कॉपी हो रहा है तो GDQT, सोर्स इज कोटेशन, टारगेट इज ऑर्डर। कंटिन्यू, देखो यहाँ पे ये टारगेट है, ऑर्डर, ये कोटेशन है, सोर्स डॉक्यूमेंट। यही सिस्टम जो हमने कॉपी किया ना, कॉपी से करके किया तो ये सारा कॉपी किया, तो यहाँ पे ये सारे रूटीन देखना है। हेडर लेवल पे देखेंगे, ये सेलेक्ट द लाइन, डबल क्लिक, देखो ये सारे रूटीन है 001, ये 001 जो है रूटीन को सिलेक्ट किया, और नीचे बिलो दिस ऑप्शन कॉल्ड सोर्स टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। ये प्रोग्राम क्या बोलता है, लेट्स सी। ये प्रोग्राम बोलता है कि कस्टमर सेम कॉपी होगा, कहां से, कोटेशन टू ऑर्डर से, ठीक है। हेडर सेम कस्टमर, ये रूटीन हेल्प करता है। दूसरा रूटीन हेल्प करता है सिस्टम को कि जो जनरल इंफॉर्मेशन है हेडर लेवल पे वो कॉपी करता है, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे जो कोटेशन में हमने जनरल इंफॉर्मेशन डाला, जैसे कस्टमर और उसका डेट ऑफ डिलीवरी, पेमेंट टर्म, ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम विल कॉपी बाय दिस रूटीन, सारे रूटीन है, ठीक है, ये सारे रूटीन। और कॉपी आइटम नंबर मीन्स, यानी कि जो आइटम इन कोटेशन में था वही आइटम सिस्टम ऑर्डर में कॉपी करेगा। अगर हमने इस चेक बॉक्स को अनसेलेक्ट कर दिया ना, या इस चेक बॉक्स को, तो क्या करेगा सिस्टम, हेडर लेवल पे तो कॉपी करेगा, आइटम लेवल पे आइटम को कॉपी नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये सारे ऑप्शन हमको जानना है। देन कम टू द आइटम, डबल क्लिक, आइटम लेवल पे आइटम कैटेगरी कोटेशन का रहता है यहाँ पे। व्हाट इज द आइटम कैटेगरी कोटेशन, एज गेन, है ना, हमेशा सोर्स का आइटम कैटेगरी रहेगा। यहाँ पे हमने सोर्स का आइटम कैटेगरी सेलेक्ट किया, एज गेन, डबल क्लिक, तो ये यहाँ पे रूटीन है। अब ये क्या रूटीन बोल रहा है, देखो दिस इज द रूटीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूटीन, कॉपी रिक्वायरमेंट रिजेक्शन रीजन। ये आइटम रिजेक्शन रीजन का मतलब है कि तुमने कोटेशन जो क्रिएट किया, और मान लो कि उस कोटेशन में कस्टमर ने बोला कि नहीं मुझे ये आइटम ऑर्डर पे नहीं चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कोटेशन में दोनों आइटम है, ठीक है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम क्या करता है, कॉपी सारा आइटम कर लेता है एक आइटम एक से दूसरे पे, ठीक है, कोटेशन टू ऑर्डर पे। लेकिन कस्टमर ने कोटेशन में बोला कि नहीं ये दो आइटम में से मुझे ये आइटम मुझे नहीं चाहिए, ये आइटम मुझे ऑर्डर पे नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। यस सर। अगर सपोज you have received the quotation and you ask, I don't want this item should to be added in the order. So what I'll do, I'll just open the quotation and there is a reason for rejection. I select what is the reason for rejection. Why not you want to add this item in the sales order? Maybe poor quality, too expensive, या whatever the reason. So too expensive. हमने इसको किया, क्लिक करके सेव कर दिया। अब क्या होगा कि अब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो जो आइटम रिजेक्टेड हो गया कोटेशन में, ठीक है, वो आइटम सिस्टम कॉपी नहीं करेगा। देखो क्रिएट विद रेफरेंस, कॉपी, है ना, सिस्टम ओनली कॉपी द एक्सेप्टेड आइटम नॉट रिजेक्टेड आइटम। तो ये रूटीन, यही रूटीन के के बेसिस पे ये होता है। आइटम इज रिजेक्टेड, रीजन मस्ट बी मेंटेन, सो द आइटम विल नॉट कॉपी फ्रॉम द कोटेशन टू ऑर्डर इफ वी हैव स्पेसिफाइड द रीजन फॉर रिजेक्शन। दिस आर रूटीन। सेकेंड रूटीन है ये जनरल आइटम डेटा। जनरल आइटम डेटा मतलब जो जनरल आइटम डेटा यानी मटेरियल का जनरल इंफॉर्मेशन। सेलेक्ट द लाइन, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, एक मिनट, जनरल इंफॉर्मेशन है सेल से रिलेटेड, सॉरी नॉट सेल से रिलेटेड, वन सेकेंड, सेलेक्ट द लाइन, हाँ, सेल्स ए, है ना, मटेरियल नंबर, सेल्स बी, मटेरियल ग्रुप, ये सारा जनरल इंफॉर्मेशन है जो सिस्टम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे कॉपी करता है विद द हेल्प ऑफ दिस रूटीन, जनरल आइटम। सेकेंड, थर्ड वन है बिजनेस डेटा आइटम। बिजनेस आइटम डेटा मीन्स, बिजनेस आइटम डेटा मीन्स थ्री टैब। बिजनेस आइटम के लिए थ्री टैब है, शिपिंग, बिलिंग और कंडीशन, है ना। शिपिंग यानी व्हाट शिपिंग प्लांट
स्टोरेज लोकेशन, शिपिंग पॉइंट, बिलिंग, पेमेंट टर्म्स, इनको टर्म्स और कंडीशन प्राइस। ये बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉपी करता है विद द हेल्प ऑफ दिस रूटीन बिजनेस आइटम। एंड फोर्थ रूटीन जो है पार्टनर आइटम, यानी सेम पार्टनर फंक्शन विल बी कॉपीड बाय सिस्टम फ्रॉम कोटेशन टू ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो पार्टनर फंक्शन, पार्टनर टैब में गए, वही सेम पार्टनर फंक्शन सिस्टम कॉपी कर लेता है फ्रॉम कोटेशन टू ऑर्डर। तो हर रूटीन में एक प्रोग्राम लिखा रहता है, उस प्रोग्राम के बेसिस पे वो सिस्टम विल कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू टारगेट ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ। यस सर। और कुछ और ऑप्शन थे यहाँ पे। कॉपी शेड्यूल लाइन, कॉपी शेड्यूल लाइन मतलब कोटेशन में जो शेड्यूल लाइन है, द सेम शेड्यूल लाइन विल बी कॉपीड बाय सिस्टम फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर। देखो यही सेल्स शेड्यूल लाइन कॉपी कर लेता है सिस्टम व्हेन वी अलाउ टू द सिस्टम टू कॉपी द शेड्यूल लाइन। और एक ये ऑप्शन है अपडेट डॉक्यूमेंट फ्लो, देख रहे हो ना, ये अपडेट डॉक्यूमेंट फ्लो, राइट। अपडेट डॉक्यूमेंट फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमने एक कोटेशन क्रिएट किया है, ठीक है, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर, ठीक है, create a sales order. Now you want to check the status of document flow. You can go to the VA02, give the order number, enter, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट फ्लो। इट शो द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कोटेशन कंप्लीट हो गया, ऑर्डर ओपन है। तो ये स्टेटस शो करता है सिस्टम अगर हम इस ऑप्शन पे सेलेक्ट किए रहते हैं तब। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम विल नॉट शो द स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? यस सर। हाँ। और क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव क्वांटिटी तो कॉपी नहीं होगा, माइनस क्वांटिटी नहीं होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा कॉपी। और प्राइसिंग टैब में क्या बोल रहा है ए कि कॉपी प्राइसिंग एलिमेंट डिटरमाइन किया। अगर तुमने प्राइस कॉपी सिस्टम में क्वांटिटी कॉपी किया, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, अगर ये 100 क्वांटिटी से 110 हो जाता है तो प्राइस भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ प्राइस चेंज हो गया यहाँ पे। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा प्राइस भी चेंज हो जाएगा। चलो कोटेशन हम लोग जब भी कॉपी करते हैं आइटम लेवल पे, हाँ हाँ तो अभी आप जब भी हम लोग कोटेशन क्लाइंट को सबमिट करते हैं ना, सपोज उसका हाँ कॉस्ट रहेगा 10 रुपीज, तो एज हाँ हम लोग आफ्टर सेल्स के बाद उसको हम लोग डिस्काउंट देते हैं, सपोज 8 रुपीज में मैंने उसको सेल कर दिया, हाँ तो मेरा कोटेशन तो 10 रुपए का बना रहेगा ना, तो कॉपी के टाइम पे वो दस हाँ। रुपए लेगा, 8 रुपीज होना चाहिए ना। नहीं तो उस समय तुमको मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा ना, फिर जैसे कि यहाँ पे तुमने जो भी कोटेशन में डाला है वही सारा कंडीशन टाइप वैल्यू लेगा, कंडीशन वैल्यू ओके, लेगा। तो मैनुअली मुझे फिर चेंज करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे मैनुअल, फिर यहाँ पे तुम डाल दो कौन सा डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज वाइज दे रहे हो तो K007, मटेरियल वाइज क्वांटिटी ओके। वाइज दे रहे हो तो K005, कस्टमर वाइज दे रहे हो तो परसेंटेज में होगा, देखो 1%, ठीक है, 1%, 2%। और अगर मटेरियल वाइज है तो K005 हमने लिया, इसमें पर क्वांटिटी 10 रुपीज, 5 रुपीज जो भी है हम दे रहे हैं, देखो 5 रुपीज, ये रुपीज वाइज हो गया, दोनों में डिफरेंस है, ये रुपीज हो गया, ये परसेंटेज हो गया। करेक्ट? ये तो हम मैनुअल ले ओके। सकते हैं। कोटेशन में जो इंफॉर्मेशन है वही कॉपी करेगा, एक्स्ट्रा कुछ कॉपी नहीं ओके। करेगा, ठीक है। अभी हाँ सपोज मैंने सर कोटेशन सबमिट किया है 1 जनवरी को, और मुझे हाँ ऑर्डर मिला है ये दिसंबर में, हाँ तो हम लोग का ये फाइनेंशियल ईयर जो है ना, अप्रैल टू मार्च है, तो मुझे हाँ कोटेशन में एडिट करने देगा वो, हाँ। कहीं नहीं, या देखो फुल अगर करने के तुमने बाद करना देखो पड़ेगा? एक एग्जांपल ले लो, तुमने ये प्राइस दिया है कस्टमर को 3000, ठीक है, इन हम्म। स्टार्टिंग 1 जनवरी, बट लेटर द प्राइस हैज बीन चेंज, ठीक है। चेंज, हाँ। मान लो कि ये प्राइस अगर मैनुअल हमने दिया ना, अगर इसका कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, देखो एक मिनट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो VK11 से हम गए, हमने कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन किया कस्टमर का, मान लो कि मटेरियल क्या है 7151 है ना, 7151, ठीक है। कैमरा, अच्छा ये कैमरा था, क्या था कल देख लेते हैं। कैमरा कैमरा। कैमरा, ठीक है। तो इसमें तुमने अभी आज के डेट में इसका प्राइस रख दिया 3500, ठीक है। हम्म। तुम उस समय 3000 में दिए थे, लेकिन प्राइस था कोटेशन में, लेकिन अब ये प्राइस चेंज हो गया, ठीक है, हाँ। 3500। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऑर्डर पे गए और यहाँ पे जाएंगे अपडेट और कैरी आउट न्यू प्राइसिंग करेंगे, देखो आ गया, ओके। प्राइस ले लिया, नया प्राइस ले लेगा। अगर हमने
प्राइस चेंज किया कंडीशन रिकॉर्ड में, तो यहाँ पे अपडेट पे जाएंगे, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग कर देंगे, सिस्टम आज का प्राइस ले लेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने 3,000 दिया था तो आज भी 3,000 होगा, प्राइस चेंज होता है ना, होता है कि नहीं। करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का काम क्या है, बिफोर गोइंग टू कंप्लीट द ऑर्डर, लेट चेक द प्राइस हैज बीन चेंज इन कंडीशन रिकॉर्ड और नॉट। हाउ दे चेक द प्राइस हैज बीन चेंज इन द कंडीशन रिकॉर्ड, वी क्लिक ऑन अपडेट एंड क्लिक ऑन कैरी आउट न्यू प्राइसिंग। यहाँ पे नया प्राइस ले लेगा सिस्टम, ठीक है। यस सर। हाँ, यही रूटीन का काम है जो यहाँ पे भी है। देखो, जो अभी हम दिखा रहे थे, एक मिनट, VT AA पे गए, पानी दे देता हूं। देखो ये रूटीन जो है, इसके अंदर ये नहीं, ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन तुमको बोलता है कि तुम प्राइस चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो ये वाला है ना, प्राइसिंग टाइप, क्या चाहते हो, कैरी आउट न्यू प्राइसिंग, तो प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे मल्टीपल ऑप्शन है जो तुमको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। हाँ, ये दिया है एससीपी ने ऑप्शंस। और एक और अब आते हैं थर्ड लाइन, शेड्यूल लाइन। शेड्यूल लाइन में क्या क्या कॉपी करता है, क्लिक ऑन शेड्यूल लाइन, डबल क्लिक द शेड्यूल लाइन कैटेगरी फॉर इंक्वायरी, सॉरी कोटेशन BP। शेड्यूल लाइन में सिस्टम क्या करता है, डेट ऑफ डिलीवरी कॉपी करता है विथ क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। तो ये शेड्यूल लाइन में ये सिस्टम ने सेम डेट ऑफ डिलीवरी कोटेशन से ऑर्डर पे कॉपी कर लिया विथ क्वांटिटी, ठीक है। और क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0, 0 यानी 0 से ऊपर, यानी 1 से लेके जितना भी होना चाहिए। तो ये कॉपी कंट्रोल हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया सेल्स डॉक्यूमेंट टू सेल्स डॉक्यूमेंट। अब हमने ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है, ये ऑर्डर क्रिएट हो गया, क्लियर, ये ऑर्डर नंबर है, क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, यस सर। डिलीवरी प्रोसेस। डिलीवरी प्रोसेस में जब जाओगे, देखो VL01N हमने लिया, VL01N। यहाँ पे सिस्टम क्या मांग रहा है, शिपिंग पॉइंट, ठीक है, डेट ऑफ डिलीवरी और रेफरेंस मांग रहा है, ऑर्डर का रेफरेंस मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, कि वही इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉपी करेगा किस पे, डिलीवरी डॉक्यूमेंट पे। तो यह रेफरेंस मांगा, डिलीवरी टाइप हमने दिया LF, इंटर किया, तो सिस्टम ने क्या किया, सारा इंफॉर्मेशन जो है सेल्स ऑर्डर में वही कॉपी कर लिया। यहाँ पे जैसे हेडर पे गए तो ये सारे इंफॉर्मेशन है ना, मटेरियल है, क्वांटिटी है, हेडर लेवल पे है, आइटम लेवल पे भी है, आइटम लेवल पे ये आइटम, क्वांटिटी, है ना, ये सब सिस्टम कॉपी करता है। यहाँ भी वही कॉपी कंट्रोल है, ये कॉपी कंट्रोल है ऑर्डर टू डिलीवरी, ठीक है। पहला हमने कॉपी कंट्रोल देखा ऑर्डर टू ऑर्डर, सेल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर टू डिलीवरी, VTLA ट्रांजेक्शन कोड, ठीक है। देखो VTLA ऑर्डर टू डिलीवरी, क्लिक ऑन पोजीशन, डिलीवरी टाइप LF, ऑर्डर टाइप GDOR। यहाँ पे सोर्स हो गया ऑर्डर, टारगेट हो गया डिलीवरी। नाउ हियर आई एम सेलेक्टिंग दिस लाइन, डबल क्लिक, तो ये सारे रूटीन लिखे हैं जो सिस्टम इसी के हेल्प से कॉपी करता है फ्रॉम सोर्स टू टारगेट डॉक्यूमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी, ठीक है, एट 2 लेवल। टू लेवल यानी हेडर आइटम लेवल, हेडर लेवल ये सारे रूटीन है। आइटम पे डबल क्लिक करेंगे तो आइटम लेवल पे आइटम कैटेगरी है, सेल्स ऑर्डर का आइटम कैटेगरी कौन सा है अपना, ऑर्डर का आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड है TAN। देखो डबल क्लिक TN, ये सारे रूटीन है। और क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी कॉपी करेगा। यहाँ भी डॉक्यूमेंट फ्लो है, यानी डिलीवरी में भी ये ऑप्शन रहता है, स्टेटस बताता है डॉक्यूमेंट फ्लो का, ये ऑप्शन है देखो यहाँ पे,
ये डिसेबल मोड में है, जब हम सेव करेंगे तब बताएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ये हो गया कॉपी कंट्रोल फ्रॉम ऑर्डर टू डिलीवरी। ठीक है, जैसे हमने डिलीवरी कंप्लीट किया, एक मिनट, पिकिंग टैब में गए एंड हमने क्वांटिटी डाला, इंटर एंड पोस्ट गुड इशू, गुड हैज बीन इशू। अच्छा ये थोड़ा सा इशू है जनरल एज अकाउंट का, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने क्रिएट किया और डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया, है ना, ये डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद कॉपी कंट्रोल किसके लिए होगा, डिलीवरी टू बिलिंग, है ना। जब हम बिलिंग के लिए जाएंगे, VF01, तो यहाँ पे सिस्टम मांगेगा डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर, इसी के रेफरेंस से सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिलिंग कर सारे इंफॉर्मेशन कॉपी कर देगा, ठीक है। तो लास्ट कॉपी कंट्रोल है ऑर्डर टू डिलीवरी के बाद डिलीवरी टू बिलिंग, ठीक है। ये लास्ट डिलीवरी टू बिलिंग, ट्रांजेक्शन कोड है VTFL। ये डिलीवरी ऑर्डर टू डिलीवरी था, अब VTLF डिलीवरी टू बिलिंग मेन पेज पे है, और नेविगेशन भी है इसका, SPRO, देन SAP रेफरेंस IMG, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग, यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे कॉपी कंट्रोल फॉर बिलिंग डॉक्यूमेंट, मेंटेन कॉपी कंट्रोल फॉर बिलिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पहला ऑप्शन सेल, सॉरी थर्ड ऑप्शन डिलीवरी टू बिलिंग डॉक्यूमेंट, डिलीवरी टू बिलिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक किए, ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, VTFL, है ना जी। यहाँ पे पोजीशन पे गए, टारगेट डॉक्यूमेंट है F2 यानी बिलिंग, सोर्स इज LF। ये कॉपी कंट्रोल है डिलीवरी टू बिलिंग के बीच में, टारगेट इज डिलीवरी बिलिंग डॉक्यूमेंट, सोर्स इज डिलीवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ भी सारे रूटीन्स हैं जो हेल्प करता है सिस्टम को कॉपी करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, यानी डिलीवरी टू बिलिंग एट 2 लेवल, हेडर एंड आइटम लेवल। आइटम लेवल में आइटम कैटेगरी TN, ये सारे रूटीन है। एक्चुअली ये रूटीन जो है एक ट्रांजेक्शन कोड है, हम बता देते हैं। ट्रांजेक्शन कोड से वो क्रिएट करते हैं, कौन, अबैप वाले। वो ट्रांजेक्शन कोड है VOFM, टू क्रिएट द रूटीन ट्रांजेक्शन कोड इज VOFM, इंटर। यहाँ पे देखो कॉपी रिक्वायरमेंट, कॉपी रिक्वायरमेंट, ये सारे ऑर्डर रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड, बिलिंग रिलेटेड। ऑर्डर पे गए तो ये सारे रूटीन देखो, है ना, ये रूटीन पे डबल क्लिक किए, ये प्रोग्राम। तो ये अबैप वाले बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए अपने को समझने के लिए कि कैसे कॉपी करता है, राइट, क्लियर। यस सर। ठीक है, बाकी का कुछ और डाउट्स होगा तो पूछ लेना, और हम उस डॉक्यूमेंट के बारे में चेक करके बताते हैं सर्विस वाला। और तुम्हारे हमको क्या बताए थे फिर से बोलो तो, ESCO हाँ एक्चुअली वो मॉडल है, वो मतलब उसके SAP में एजेंसीज है। होते हैं। एसएपी में नहीं है, जनरल है वो। हाँ SAP में नहीं, कॉमन SAP में कॉमन नहीं होगा वो। एसएपी में कॉमन कॉमन है। हाँ हाँ, वही मतलब तो बोल वो रहा हूँ। एक्चुअली फर्म टाइप है वो लोग हाँ इसको करते हो। हाँ, जैसे कि अगर आप तो समझ कस्टमर गए। हो, मैं सप्लायर हूँ, हाँ हाँ तो आपको हाँ हाँ प्रोडक्ट की जरूरत है, आपके पास बजट नहीं है, और मेरे पास प्रोडक्ट है जो आपको सेविंग करके देगा, तो बीच में एस्को कंपनी आएगी, हमारे बीच में वो हाँ एग्रीमेंट करके सेल करेगी आपको। तो मैं आपका 10 रुपए का हाँ। प्रोडक्ट एस्को को 10 रुपए में बेचूंगा, आपको वो 12 रुपए हम्म, में बेचेंगे, बट आपको उसको पेमेंट साल में करना है। और जैसे हाँ आपको समझ गया सेविंग समझ मिलेगा गया। ना, जैसे कि आपका भी अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, तो आपको हम्म। सेविंग होगा, तो आपका जो पैसा बचे आपको मैनेजमेंट को बता के उनको रिलीज करना है मंथली बेसिस पे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट तो वो करेक्ट, समझ एस्को गया हम करके ही ये। है। हाँ, हाँ हाँ, मेडिएटर का काम करती है। मीडिएटर मीडिएटर यस। उसमें ओपेक्स करेक्ट, भी है, ओपेक्स भी ओपेक्स भी है। दूसरा एक मॉडल है। हाँ, ओपेक्स अच्छा मतलब अच्छा। कैपेक्स को अपोजिट है, जिसके पास बजट नहीं होता है, तो वो लोग ओपेक्स करते हैं। हो ठीक, ठीक है। बाकी सर्विस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो हम शेयर करते हैं। तो ये हम लोग का सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो हम एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, अपना ओके सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, तुम उसको एक्नॉलेज कर दो। और बाकी तुम कांटेक्ट में रहो डायरेक्ट मेरे से, कुछ भी इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, है ना, ये ठीक है। चलेगा, चलेगा सर, नो हाँ प्रॉब्लम। तो हम जस्ट तो इसका डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो ना, जो वर्ड फाइल जो भी है ना हाँ पेंडिंग रहेंगे हाँ वो। हाँ,
नहीं, हम ये और आपके डॉक्यूमेंट पास भेज दे रहे हैं कुछ और तुम मुझे बाद में भी याद दिला देना कि कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हो गया है, नहीं शेयर किया तो हम हाँ शेयर कर देंगे, ठीक है? अभी हाँ हम आपके कॉपी पास सर कंट्रोल दूसरा और कोई रहेगा कंडीशन। ना और भी तो वो भी हाँ, भेज दो जो हाँ, मतलब सब भेज देंगे, हम सब भेज इजी देंगे। अभी स्टडी के दोनों लिए थोड़ा डॉक्यूमेंट भेज ये डॉक्यूमेंट हाँ भेज दे रहे हैं और बाकी तुम प्रैक्टिस करके देखो और कुछ समझ में आए हाँ नहीं आए तो हमसे पूछो। ये चलेगा फॉर्मेलिटी चलेगा हम मैसेज ड्रॉप कर दे रहे हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, तुम उसको एक्नॉलेज कर दो, ठीक है? श्योर 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 नो प्रॉब्लम ओके, चलो भैया, बाय। चलेगा ओके थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक